Hi all of you, a very warm welcome to this chemistry session. So today we are going to have video on chemical reactivity from chapter Elements of Group 1 and Group 2. So let's start with it. So if we talk about chemical reactivity of Group 1 and Group 2, so who is more reactive? Group 1 और Group 2 कौन ज़्यादा reactive है? So in Group 1 there is one valence electron and in Group 2 there are two valence electron. So donating one electron is far easier than donating two electron. So ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके it participate in reaction, whereas it has to donate two electron to participate in reaction. So that's why Group 1 is more reactive than Group 2. Okay. Now we'll study the various reactions of Group 1 and Group 2. So first we'll start with reaction of oxygen with Group 1. Okay. So यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी लिथियम का, so लिथियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो लिथियम मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है. एंड लिथियम also reacts with nitrogen to form lithium nitride, and that is the anomalous behavior of lithium. Now other elements like sodium react करता है ऑक्सीजन के साथ, तो अपने को मिलता है सोडियम पेरोक्साइड. ये जो है यहाँ पे दिस इज सोडियम पेरोक्साइड. Now potassium reacts with oxygen, तो क्या मिलता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. क्या मिलता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज दिस पेरोक्साइड? पेरोक्साइड यानी होता है O2-2. सुपर ऑक्साइड होता है O2-1 एंड ऑक्साइड क्या होता है O2- है ना. सो ये O2 यानी एक ऑक्सीजन जो है वो -1 होता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इज -1 यानी एक ऑक्सीजन कितना होगा, -1/2. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. अभी पोटेशियम के आगे रुबिडियम, सीशियम, दे ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. ओके. नाउ लेट्स सी रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद ग्रुप 2. अब ग्रुप 2 के साथ हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे. तो ग्रुप 2 में बेरिलियम reacts with oxygen to form beryllium oxide. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. Now this further reacts with oxygen to form magnesium peroxide. Similarly magnesium जो है वो नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शंस. बैलेंसिंग पार्ट तो अभी तुम लोग को आता ही रहेगा, सो आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, you have to balance it. So basically in group 1 metal reacts with oxygen to form metal oxide, and further metal oxide reacts with oxygen to form peroxide. Okay. So this is the reactivity of group 1 and group 2 with oxygen. Now let us do next reaction, that is reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. So first हम लोग करेंगे ग्रुप 1 के साथ में. फॉर ग्रुप 1 मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड. ओके. यहाँ पे मेटल ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सो दिस इज +1 एंड दिस इज -1, सो इट विल फॉर्म MH. नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. नाउ इधर लिथियम हाइड्राइड बनता है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड. सो नाउ इनका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, लिथियम हाइड्राइड होता है. नाउ व्हाई लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है. देन हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है. सो व्हेन साइज ऑफ atom increases, bond length also increases.
increases, bond length increase होगा तो strength क्या होगा, decrease होगा. So stability decreases down the group. Now if you talk about group 2 का reaction M plus H2 will give you what? Now here metal क्या है, +2 है और हाइड्रोजन है -1. So क्या बनेगा, MH2. Okay. Now except beryllium, all reacts with hydrogen. So it is from magnesium to barium. इसका भी similarly है, magnesium hydride is more stable. फिर आता है calcium hydride and so on. So stability of hydride decreases down the group. That is when size of atom increases down the group, bond length increases. Bond length increase होने पे bond strength क्या होता है, decrease होता है. Okay. Now next is reaction with halogens. Now first हम लोग group 1 के लिए देखते हैं reactivity with halogens. So M plus X2 all alkali reacts with halogens to give metal halides. Now here M is +1 and X is -1, तो compound क्या बनता है, MX. So now you can do balancing का part. Similarly group 2 में क्या होगा, M plus X2 will give you M is +2 and X is -1. So compound क्या बनेगा, MX2. Okay. Now next हम लोग करेंगे reducing nature. Now what do you mean by reducing nature? Tendency to donate electron is reducing nature. So group 1 और group 2, अभी group 1 क्या करता है, M क्या करेगा, M1 will give 1 electron and it will become M plus. Similarly for group 2 ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्या बन जाएगा, M+2. सो किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, M+ का कि M+2 का. गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर इजियर देन गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन. सो M1 इज मोर रिड्यूसिंग नेचर देन दैट ऑफ ग्रुप 2. ये जो ऑर्डर है ये ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है. So now in your textbook some tables are given for physical property. If you will check out that table, सारी reducing nature में जो reduction potential वहाँ पे दिया हुआ है, electrode का reduction potential वो सबका negative दिया हुआ है. So negative sign क्या indicate करता है, they are good reducing characters. Okay. Now next हम लोग study करेंगे reaction of group 1 and group 2 with solution in liquid ammonia. Okay. So first we'll study for group 1. अब group 1 में मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और M+1 बन जाता है. Now this M+1 ये क्या करेगा, अमोनिया के साथ सराउंड हो जाएगा बाय मेकिंग आयन डाइपोल इंटरेक्शन. इसका M+ है, सो इट विल गेट सराउंडेड विद अमोनिया. दिस इज नेगेटिव डाइपोल. ऐसे क्या करता है, ये अमोनिया के साथ सराउंड हो जाता है. ओके. कितने अमोनिया के साथ सराउंड होता है पता नहीं है. एंड दिस बिकम +1. सो दिस इज नोन एज अमोनिएटेड मेटल. क्या होता है ये, अमोनिएटेड मेटल. नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया. अब ये X है इसलिए मैं इधर X लिख देती हूँ. अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, इट इज पॉजिटिव. So it will make bonds with hydrogen. Okay. ऐसे bonds बनेंगे इसके. So
this will be what? It will depend. So this is minus. This is known as ammoniated electron. क्या बोलते हैं इसको? Ammoniated electron. अब मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल. सो m, अब ये y है ना, तो यहाँ पे y आ जाएगा. सो m प्लस x प्लस y NH3 is giving you m NH3x plus okay, this is ammoniated metal, this is ammoniated electron. अभी इसका जो कलर होगा सोल्यूशन का वो कैसा होगा? डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन. ओके, अब इसको मैं थोड़ा स्टैंड बाय पे रखूंगी, मींस के सोल्यूशन को अनटच रखूंगी. तो यहाँ पे क्या होगा? m प्लस, this is ammoniated metal, this is ammoniated electron, reacts with ammonia further और क्या मिलता है? MnH2 plus H2. okay, metal amide plus hydrogen. This is nothing but ammoniated, ये same है, ammoniated metal, and this is ammoniated electrons. okay, और जब भी इसका फर्दर रिएक्शन होता है तो सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्रॉन्ज हो जाता है. ओके, नाउ दिस सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही ये कलर शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में होते हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे बिकम्स एक्साइट, दे गो टू हायर स्टेट, एंड जब हायर स्टेट पे जाते हैं दे इवॉल्व एनर्जी, एंड वो एनर्जी की वजह से क्या आता है? सोल्यूशन के पास कलर आता है. नाउ दिस सोल्यूशन, सिंस देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, बट जैसे जैसे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे एंड सोल्यूशन क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक बन जाता है. दिस इज क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिस सोल्यूशन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग नेचर. दिस सोल्यूशन शो रिड्यूसिंग नेचर. तो ये हो गया ग्रुप 1 के लिए. नाउ सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए भी रिएक्शंस है. नाउ फॉर ग्रुप 2 मेटल क्या करेगा? दो मेटल विल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ. मेटल क्या करेगा? मेटल विल give 2 electron and it will become m plus 2. Now this m plus 2 will get surround with ammonia और ये क्या बनेगा? ammoniated metal. सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अमोनिया के साथ सराउंड करते हैं and it forms ammoniated electrons. अब मैं क्या करती हूँ? बैलेंस करती हूँ. 1 ओवरऑल रिएक्शन 1, 2 and 3. So ये 2 electrons, this will get cancel out. So metal plus x plus 2y NH3 gives you m ammoniated metal plus ammoniated electron. Okay. Now ये जो सोल्यूशन होता है इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है? पेल ब्लू कलर का होता है. इट इज पेल ब्लू कलर सोल्यूशन. Okay. So this was all about the chemical reactivity of group 1 and group 2. Now let's see its MCQs because MHCT 2021 जो सीरीज है यहाँ पे हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हैं with just a small theory of its theory, क्योंकि थियोरी जब तक नहीं आएगा हम लोग उसके MCQs भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में तुम लोग को थोड़ा थियोरी एक्सप्लेन करना ही पड़ता है.
ओके तो मैं वही हर वीडियो में करती आ रही हूँ, शॉर्ट में थोड़ा समरी दे देती हूँ तुम लोग को थियरी का, एंड देन हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो जस्ट सी फर्स्ट एमसीक्यू, रिएक्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड पोटेशियम इज, सो सोडियम जो होता है वो वाटर के साथ में विगरसली रिएक्ट करता है एंड इट इवॉल्व हीट, एंड वो हीट इवॉल्व होने की वजह से इट ऑल्सो कैचेस फायर। ओके तो ये जो रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर क्या देगा, NaOH देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, एंड उसके साथ में कुछ हीट भी देगा, एंड ये हीट के वजह से क्या आएगा, वाटर पे फायर भी आ सकता है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The correct sequence of increasing covalent characters are, so अपने को पता ही है बेरिलियम और लिथियम दोनों भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, बट बेरिलियम जो है वो मोर कोवलेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ लिथियम। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट जो है वो बेरिलियम है, फिर लिथियम है, फिर आएगा सोडियम। सो योर आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया कंपाउंड फॉर्म इज सोडियम अमाइड। अभी हम लोग ने ये रिएक्शन देखा था। सो ये क्या बनाता है, एम किया था ना हम लोग ने रिएक्शन, अमोनिएटेड मेटल प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया क्या देता है, मेटल अमाइड प्लस हाइड्रोजन। Which one of the following metal is more reactivity? More reactive. So down the group reactivity increases. Sodium group 1 and group 2. Group 1 is more reactive than that of group 2. So यहाँ पे lead तो p block element है, मीन्स उसके reactivity का कुछ comparison ही नहीं है s block के साथ में। s block elements are far reactive than p block element. So अगर हम लोग compare करेंगे तो मैग्नीशियम तो चला जाएगा क्योंकि ग्रुप 2 का रिएक्टिविटी इज लेस देन ग्रुप 1, तो ए एंड बी में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, सो आंसर इज पोटेशियम। Solution of sodium metal in liquid ammonia is strongly reducing due to presence in solution of the following। तो अभी जस्ट मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर आता है सोल्यूशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक के जैसे बिहेव करता है, एंड ऑल्सो इट शो रिड्यूसिंग नेचर, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। Now electronic configuration of metal is 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, सो m इज +1। ओके एंड ऑक्सीजन क्या रहेगा, -2। सो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, MO2, करेक्ट ना, सॉरी क्या होगा, MO2 बनाएगा, M2O, बट यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इट इज अ सोडियम, बराबर ना, सोडियम है। तो अभी हम लोग ने किया था ना, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पेरोक्साइड, क्या करता है ये, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। सो नाउ यहाँ पे चेक करो कौन है सोडियम पेरोक्साइड, कहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -1 आएगा। Next question, barium burns in air to form, barium burns in air to form, so barium है,
ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, Ba is +2 and oxygen is -2, so क्या मिलेगा, बेरियम ऑक्साइड. सो आंसर क्या आएगा, A. ओके. फर्दर barium oxide will react to give barium peroxide. Which of the following has correct increasing basic character? So ये सब elements किसके हैं, ग्रुप 2 के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम. सो डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड देयरफॉर बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस. सो कौन है सबसे ज्यादा, बेरियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम एंड देन आएगा बेरिलियम ऑक्साइड. सो आंसर इज बी. नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय बेरिलियम इज 2. कितने फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड्स. As alkali earth metal except beryllium tends to lose their valence electron, they act as strong reducing agent. KO2 is an example of KO2. Potassium is +1. ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग को पता नहीं है. So X is what, -half. So -half कौन होता है, सुपर ऑक्साइड. Among sodium halide NaF, NaCl, NaBr and NaI, NaF has highest melting point because क्या होता है, NaF, NaCl, NaBr, NaI सब में छोटा जो साइज है एनायन का वो किसका है, F का है. Size is small. When size is small, lattice energy required to break that bond will be more and lattice energy will be more. इसका मतलब lattice, see, 2 factors है lattice energy more होने का, that is small size and more polarization. Okay, more polarization यानी ज्यादा ionic characters. So charge, high charge and small size are responsible for high lattice energy. अब high lattice energy का मतलब होता है high boiling point. Now high charge and smaller size का मतलब क्या है, ionic characters will be maximum. Okay, so therefore its answer is C. NaF small size में है, small size में होने की वजह से उसमें आयोनिक कैरेक्टर्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन का, सो आयोनिक कैरेक्टर्स आर मोर एंड देयरफॉर इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगरसली देन लिथियम, दैट इज बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सोडियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन लिथियम, इसके वजह से उसका रिएक्टिविटी क्या है, वाटर के साथ में ज्यादा है. ओके, सोडियम से भी ज्यादा किसका है, पोटेशियम का है. ओके, सो दिस वाज माय लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया रहेगा, कुछ तो तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीजें रिकलेक्ट हुई रहेंगी. सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल Catch 25 साइंस एकेडमी. थैंक यू सो मच, टेक केयर.